وہ ہمارے ہاں ایک کینٹ فارمیسی ہے, 15-16 ڈاکٹر ہے, تو ان میں ایک ڈاکٹر غیر مقلد تھا, نام اس کا شرافت علی تھا, اگرچہ شرافت اس کے قریب نہیں آئی تھی, نام شرافت علی تھا. اب ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اپنے مولوی صاحبان کو دعوت دے آنا. اب وہ آتے, چائے مٹھائی وغیرہ چلتی اور 2-4 رسالے رکھ جاتے وہاں, جو ان کا طریقہ کار ہے. 2 ڈاکٹر اور گھر رفع دین کرنے لگے. وہ ایسے ایسے ان میں بات پھیلنی شروع ہو گئی, اور یہ ذہن تو سب کا بن گیا حدیث. وہ ہمارے دورہ حدیث شریف میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, عبدالغفور طلح گنج کا. تو ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر طلح گنج کا تھا, وہ کبھی دوائی کی ضرورت ہوتی تو اس وجہ سے وہ اپنا واقف ہے وہاں چلا جاتا. اب وہ گیا تو جناب وہ 4 مولوی بیٹھے غیر مقلد, خوب مٹھائیاں اڑ رہی ہیں, چائے اڑ رہی ہے, اور وہ ان کو فقہ کے خلاف اکسا رہے ہیں. کہتا مجھے جواب تو ان کی باتوں کا آتا نہیں تھا, جناب میں بھی تعلیم تک خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا. میں بڑے غصے میں بولا کہ آپ ایک ہی طرف کی باتیں سنتے ہیں, ہمیشہ دوسری طرف کی کیوں نہیں سنتے. اب وہ ان سے اتنے متاثر ہو چکے تھے, کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو جلدی خام کا غصہ آ گیا ہے. یہ مولوی صاحبان جب سے آنے لگے ہیں انہوں نے ایک بات بھی کبھی اپنی نہیں بتائی. جو سناتے ہیں نبی پاک کی حدیث سناتے ہیں, ایک بات بھی انہوں نے کبھی اپنی نہیں. دکھا کہ وہ دوسری طرف والے بھی حدیث سنائیں گے نا نبی پاک کی. اچھا اگر کوئی ہو تو لے. اس نے آ کر میرا شاگرد عاصم شاہ بخاری, اس کو کہا, اس نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا کہ ان کو کتاب حدیث رائے حدیث دیا جائے. وہ لے گیا, چھوٹے اس کا اپنا ہے, اس نے کتاب دی. جو بڑا ڈاکٹر کا نام محمد الیاس تھا, لیے جی کتاب دے. اچھا حدیثیں ہیں کہ دیکھ لیں, اگر حدیثیں ہیں تو رکھ لیں, نہیں ہے تو میں واپس لے جاتا ہوں. تو دیکھا کہ باقی حدیثیں لکھی ہے, ترجمہ لکھا ہے. کتنے کی آئی ہے؟ پہلا ایڈیشن ہے جی 100 روپے کی ہے. ٹھیک ہے, اس نے 500 کا نوٹ نکالا کہ یہ رکھ جاؤ, اور 400 کی اور ایسی کتابیں استاد جی سے مشورہ کر کے لے آئے. تو آیا, میں نے کہا کہ نماز مسنون, رسول اکرم کا طریقہ نماز, اور میرے مجموعہ رسال دیا. اب یہ تو کتاب رکھ کے پیسے لے کے آ گیا. اس شرافت علی نے فوراً شرارت کی اور فون کیا اپنے مدرسے میں کہ خیر المدارس سے کتاب آئی. کچھ فرمانا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی پاک والی نماز بتاؤں تو پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کی, پھر نہیں کی. ثم لا یعود, تو دیکھو نفی بھی آ گئی, اس بات بھی آ گیا. جب ہم اپنے دعوے کے دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں, نفی اس بات, تو آپ سے بھی ہم دونوں دعووں کی دلیل مانگتے ہیں تاکہ مکمل آئے. آپ 18 جگہ رفع دین نہیں کرتے, کیونکہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں نا, 8 دونی 16, اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے. 18 جگہ آپ رفع دین نہیں کرتے اور 10 جگہ کرتے ہیں. تو جس طرح ہم نے اپنا مکمل دعویٰ پیش کیا ہے نفی اس بات کی حدیث, آپ صرف ایک حدیث پیش کر دیں جس میں 18 جگہ کی نفی ہو اور 10 جگہ کا اس بات ہو. اب وہ ڈاکٹر بھی گنے, 18 کی نفی تو نکلے ہی نہ, اور 10 جگہ کا اس بات بھی پورا نہ ہو, 9 جگہ کا بنے. تو یہ ساتھ ہے کہ دیکھو انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک سنت چھوڑنے والا لعنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم سیاستہ کا نام یہ دھوکے کے لیے لیتے ہیں. اس کے مطابق نماز پڑھنے سے یہ نمازی نہیں بنتے, لعنتی بنتے ہیں. بلکہ آصف شاہ نے کہا کہ آج تک تو کہتے تھے کہ حنفیوں کی نماز خلاف سنت ہے. اب یہ حدیث سنا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی خلاف سنت پڑھتے تھے, کیونکہ ایک سنت چھوڑتے رہے ذاکاؤں میں رکعتین والی. اس پر وہ چاروں گھبرا گئے. تو گنتی کرے وہ پوری نہ ہونا, 18 کی نفی نکلے اور نہ 10 کا اس بات نکلے. تو ان کو بات بدلنے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے. اب ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان کرنے لگا کہ بڑے متبع سنت تھے اور ان کو سنت پر عمل کرنے کا بڑا شوق تھا.
कहते वो फजाइल बयान करने लगा और मैंने किताबें देखनी शुरू कर दी कि कौन कौन सी किताबें हैं। तो मुस्लिम हुमैदी रखी थी, मैंने उठा ली और वो सफर निकाल दिया 277। वो जब 2-3 मिनट उसने फजाइल बयान किए तो कहता है मैंने कहा कि आज जाकर कम से कम 10 नफल शुक्राने के पढ़ना। कि क्यों? कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आज यहां नहीं थे। सोचे तो क्या होता कि देखो ये उनकी रवायत है मुस्लिम हुमैदी में कि वो पत्थर मारते थे हर उस आदमी को जो हर कफज और रफा ऊंच नीच में रफा जैन नहीं करता। हर ऊंच नीच पर रफा जैन की जाए तो 4 रकत में 28 जगह बनती है और आप करते हैं 10 जगह, तो गोया 4 रकत में 18 लानते अल्लाह भेजता आप पर और 18 पत्थर अब्दुल्ला बिन उमर मारते तुम्हें। तो हर 4 रकत में तुम 18 लानतों के 18 पत्थरों के हकदार हो। बस इस पर तो जो उछले ना कि देखो जी कैसी सख्त बातें कर रहा है, ये बिल्कुल गलत तर्जमा कर रहा है, ये अपने अल्फाज वापस ले। इसने कहा कि ये रवायत रखी है सामने। डॉक्टरों ने कहा कि आप ये पत्थर मारना किसका तर्जमा कर रहे हैं? उसने कहा कि हासा बहु लिखा है, हा स्वाद वाह। उन्होंने कहा कि इसका तर्जमा पत्थर मारना नहीं है, नरसंहार करना नहीं है। ये तर्जमा करता था कि अब्दुल्ला बिन उमर तुम्हें संसार कर देते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लिख दो, इनसे भी लिखवा लेते हैं तर्जमा, हम किसी प्रोफेसर से पूछ लेंगे। लिख दिया संसार करना। उनसे कहा कि तुम लिखो कि संसार करना गलत है, इसका माना होता है पत्थर मारना। तो डॉक्टर हंस पड़े कि फिर तो एक ही बात हुई, फिर क्या कौन सी गलती हुई इसमें? अब उसके बाद वो घबराए, सियासीता सारी बोल गई बेचारों को। सुनने को बड़ा बहकी उठाई कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रफाई जान करते थे। कब आप वाली तो साबित ही नहीं, अव्वल तो रवायत ही सही नहीं है। आप उसमें 18 की नफी 10 का इस बात दिखा दे, मैं अभी बावजू हूं 4 नफल पढ़ूंगा रफाई जान के साथ। क्यों आप धोखा देते हैं लोगों को? अब वो गिने पूरी ना हो, फिर उसी बहकी से उसने निकाल के दिखाया अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत कि मैंने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी, अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी, उमर फारूक के पीछे नमाजें पढ़ी। वो पहली तकबीर के वक्त रफ़ा यदैन करते थे, फिर नहीं करते थे। मैं देखो नफी से बात दोनों आ गई है ना, एक जगह करना और बाकी किसी जगह ना करना। हम जो नबी पाक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही है, हम जो सिद्दीक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही है, हम जो फारूक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही है। आप दिखाते कुछ है, करते कुछ है। आपकी रफ़ा यदैन तो है ही नहीं। आखिर उसने कह दिया कि शिया भी रफ़ा यदैन करते हैं। शिया के रफ़ा यदैन करने की 2-3 हदीसें हैं, हर तकबीर में रफ़ा यदैन करना इब्ने माजा में। शाफियों की रफ़ा यदैन करने की 2-4 हदीसें हैं, लेकिन गैर मुकल्लदों की रफ़ा यदैन की एक हदीस भी दुनिया की किसी किताब में नहीं है। और सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं थोता चना बाजेगा ना। अब इस पर उन्हें बड़ा गुस्सा लगा कि शियों की रफ़ा यदैन साबित है। तो उसने बताया कि उनकी जो साबित है वो भी इतनी जितनी जूते पहनकर नमाज पढ़ना, बस। गोया जो रफ़ा यदैन करके नमाज पढ़ता है वो ऐसा है जैसे जूते पहनकर नमाज पढ़ने वाला, और जो रफ़ा यदैन के बगैर नमाज पढ़ता है वो ऐसे जैसे जूते उतार कर नमाज पढ़ने वाला। जूते पहनकर नमाज पढ़ने से ज्यादा किसी की रफ़ा यदैन का सबूत किसी हदीस में मौजूद नहीं। खैर वो किताबें बंद करके चल दिए। अब डॉक्टर साहबान को एहसास हुआ कि भाई वाकयातन हम एक ही तरफ की बातें सुनते रहते हैं, दूसरी तरफ की कभी नहीं सुनते। तो उन्होंने आसिफ शाह साहब से कहा कि आप अपने उस्ताद साहब से कहे कि कभी यहां हमारे यहां आए। कहा कि उनके पास तो वक्त नहीं होता, वो दुकानों पर नहीं करते। वो तो वहां भी आप जाएंगे तो शायद वक्त मिले या ना मिले, क्योंकि इन्होंने न मिर्जाइयों के खिलाफ कोई काम करना है, न ईसाइयों के, न बरेलवियों के, न खारजियों के। उसने तो सारे मज़ामीन पढ़ाने होते हैं, इसलिए वो तो फारिग नहीं होता। अब जब वो हैरान हुए कि ये बगैर बुलाए रोज आए रहते हैं और वो सुना बुलाने से भी नहीं आता,
और शौक हुआ, अच्छा फिर आप उनसे इजाजत ले, हम वहां हाजिर होंगे। अब कोई महीना गुजर गया, मैंने कहा मैं फारिग नहीं हूं। वो और ज्यादा प्रिय, कौन आदमी है जो मुलाकात का वक्त ही नहीं देता। महीने के बाद उसने कहा जी वो रोज फोन करते हैं, तंग करते हैं, आप वक्त दे दे। मैंने कहा एक शर्त पर वक्त मिलेगा कि पहले 1 घंटा वो मेरी बात सुनेंगे, ताकि मुझे पता चले कि 1 घंटा कम कम मैंने सही काम पर लगा दिए। न वो आकर अपने इधर उधर के सवाल पूछने शुरू कर दे तो असल बीमार जो है वो असल बीमारी छुपाता है ना, इधर उधर की बातें पूछता है ना आदमी। तो उनकी जो असल बीमारी है उस पर 1 घंटा मैं बात करूंगा, पहले वो उनको सुननी पड़ेगी, उसके बाद फिर उनको सवालात का मौका देंगे हम। उन्होंने कहा जी हमसे 2 घंटे पहले बात कर ले, हम आराम से सुनेंगे, वो वक्त जरूर हमें दे, हम मिल रहे हैं। आ गए, अलैक सलैक करके बैठ गए सारे। वो शराफत अली भी साथ है जो गैर मुकल्लिफ था। बैठ गया जब, मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आजकल क्या कुछ हो रहा है? कि जी दीन की तहकीक हो रही है। इनका दीन की तहकीक का तरीका ये नहीं जो आपने इख्तियार किया है। जी और क्या है? मैंने कहा आप 4 साल वहां से छुट्टी करें, फार्मेसी से यहां आ जाए और वहां अपनी फार्मेसी में कुमारों को बैठाएं नुस्खे लिखने के लिए। किन को बैठाएं? कुमारों को। जी वो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं, जो कुछ आप दीन के साथ कर रहे हैं वो आपकी डॉक्टर के साथ करेंगे, इतना कुछ ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो अगर पढ़े लिखे थे वो समझ गए। उनको क्या पता डॉक्टरी क्या है, मैंने तुम्हें क्या पता दीन की तहकीक क्या है? तुमने दीन को डॉक्टरी से भी निकम्मा समझा कि जो उठे इसकी तहकीक शुरू कर दी, इसका कोई असूल ही नहीं है दुनिया में। मैंने कहा ये तो वाकई गलती है हमारी। फिर चूंकि मुझे पता था उन्होंने आना है, मैंने एहयाल उलूम रखी थी तर्जमे वाली। उनका ये एहयाल उलूम इमाम गजाली रहमतुल्लाह लिखी है, आज से 1000 साल तकरीबन पहले का आदमी है ये। लिखा है कि जो शख्स दीन का पूरा इल्म नहीं रखता और फिर दीन में तहकीक का नाम लेता है, उससे जानी 1000 दर्जे बेहतर है। क्यों? जानी सिर्फ अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, और ये कितने मुसलमानों के ज़हन में शुबहात पैदा करके उनका ईमान बर्बाद करेगा। उनका डॉक्टर साहब जिसका नाम आपने तहकीक रखा है वो ये गुनाह है जो आप कर रहे हैं। फिर मैंने मीज़ान कुबरा शरानी उठाई, वो भी तर्जमे वाली, तर्जमा शाया हो गया, रखी थी मैंने। लिखा है अल्लामा शरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो दीन से पूरा वाकिफ ना हो फिर दीन में दखल दे। इस्लामी हुकूमत का फर्ज है कि बाउले कुत्ते को बाद में मारे और उसको पहले कत्ल करे, क्योंकि बाउला कुत्ता जिस्म का दुश्मन है और ये ईमान का दुश्मन है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, आजकल अल्फाज बदल गए हैं ना। जिसको पहले जमाने में कंजरी कहते थे, बाजारी औरत कहते थे, आजकल लफ्ज बदल गया है कि ये एक्ट्रेस है। वो भी बहुत चौड़ी होती है कि मेरी इज्जत हो रही है, मैं एक्ट्रेस हूं। जिसको पहले दल्ला कहते थे, बचोला, उसका नाम आजकल एक्टर है, वो बड़ा खुश है। बात वही है। अब देखो ना, जिसका नाम पहले तबर्रा था कि सहाबा पर तबर्रा करते हैं, अब उसका नाम हो गया है तनकीद साले। 7 साले का लफ्ज भी है कि मौदूदी साहब तनकीद साले करते हैं, तो वही तबर्रा ही ना। नाम जरा नरम हो गया है। जिसका नाम पहले तहरीफ कुरान था, अब उसका नाम तफहीमुल कुरान हो गया, क्योंकि तहरीफ से लोग तंग है ना लफ्ज से। जिसका नाम था कि तकिया है, कहते नहीं पॉलिसी है जमात की। आज पॉलिसी है कि औरत सदर ममलकत बन सकती है, कल पॉलिसी बन जाएगी कि नहीं बन सकती। तो उन अल्फाज को आजकल बदला जा रहा है, उनकी जगह ज़हनी आवारगी का नाम तहकीक रखा हुआ है। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था कादियानियों के बारे में, तो मेरा जो सदर था मुझे नहीं पता था कि ये मौदूदी है। तो मैंने कहा कि बाकी खुदा के नबी जितने भी सच्चे हैं वो अल्लाह की रहमतें लेकर आए थे। ये मिर्जा जो है ये बद्दुआएं करता था कि फलां मर जाए, फलां मर जाए, या अल्लाह जल्जला आ जाए, या अल्लाह सैलाब आ जाए, या अल्लाह ताउन पड़ जाए, या अल्लाह काल पड़ जाए।
ये मनहूस नहुस्ते लेकर आया था और नहुसत से खुश होता था। जैसे उल्लू उजाड़ से खुश होता है ना, ये सारी जिंदगी इसी से खुश होता था कि कहीं की मुसीबत आ जाए। इसलिए मौलवी सईद मोहम्मद हयात पसरूरी ने पंजाबी में कहा है ना, किसे दरिया विच आई तुगयानी है मिर्जा के मेरी ते नबूवत दी निशानी है। इस सैलाब आ गया तो मौजा हो गया कि मिर्जा साहब। किसे मुखालिफ दी गां मज मोई है महमूद आखे मेरे ते प्यो दी पेश गोई है। किसी की भैंस भी मर जाती, भेड़ भी मर जाती ना, तो मिर्जा महमूद कहता कि मेरे वालिद साहब की पेश भी पूरी हो गई। तो ये मैं बयान कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सदर साहब मौजूदी है। तो मैंने कहा कि जैसे मिर्जा कादियानी इसी बात में हर वक्त रहता था कि सैलाब है, ये है, हमारे मुल्क में एक जमात है जो रात दिन दुआएं मांगती है अल्लाह कहीं जंग छिड़ जाए, कहीं सैलाब आ जाए। 2 दिन सैलाब आ जाए तो 10 साल की रोटियां इकट्ठी कर लेती है। हर चौक में एक ट्रक खड़ा होता है जमात इस्लामी का कि भाई जो इसमें डालना है डालते चले जाओ। तो मैंने कहा ये भी हर वक्त दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह कहीं जंग लग जाए, ताकि 1-2 दिन भी जंग लगे तो 10-20 साल की रोटियां हमारी बन जाती है। तो वो सदर साहब की तरफ बात वो एक साथ हरा रहा था, जी हाँ जी हाँ। बाद में मुझे उन्होंने बताया कि वो खुद मत हो दिया था। तो मैंने कहा कि देखिए, जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, ये इतना बड़ा गुनाह है। इतने बड़े गुनाह को तहकीक का नाम दे दिया गया है इस दौर में। फिर मैंने बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ निकाल के रखी कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत लेते थे तो उसमें एक शर्त यह भी होती थी, अल्लाह नुनाज़ अल अम्र अहलहू, कि अहल से नाअहल मुनाजत नहीं करेगा। गैर मुकल्लियत तहकीक का नाम नहीं है, ये मुनाजियत है नाअहल की मुजतहिद के साथ। फितना इनकारे हदीस तहकीक का नाम नहीं है। मुहद्दिसीन फन के अहल है, उनके साथ ये नाअहल मुनाजियत करते हैं, झगड़ा करते हैं। जिस गुनाह से हजरत पाक ने रोका था वो ये गुनाह करते हैं सारे। इसकी मैं आम फहम मिसाल दिया करता हूं। जब उनसे कहे ना भी आप ऐसा क्यों करते हैं, तो ये गैर मुकल्लद कहते हैं अबू हनीफा कोई मासूम थे, मुनकर हदीस कहते हैं इमाम बुखारी कोई मासूम थे। तो मैं कहता हूं कि झगड़ा मासूम गैर मासूम का नहीं है, झगड़ा माहिर गैर माहिर का है। झगड़ा यहां मासूम गैर मासूम का नहीं, झगड़ा है माहिर गैर माहिर का। तो फिर मैं समझाने के लिए आम फहम मिसाल देता हूं ताकि आप खुद भी समझे, आप भी समझे कि देखिए एक डॉक्टर साहब क्वालिफाइड डॉक्टर है, उन्होंने वहां अपना क्लिनिक बना लिया। मैंने देखा भाई देखो खूब कमाई हो रही है, अब मैं भी इधर दुकान खोल के बैठ गया और का नाम क्या रखा, अल्लाह तवक्कल दवाखाना। अल्लाह तवक्कल दवाखाना। अब कोई मेरे पास नहीं आता कि ये ना पढ़ा ना लिखा, नाम मोहम्मद फाजल। अब मैं जब देखता हूं कि सारे गाहक उधर जा रहे हैं, इधर मेरी तरफ कोई नहीं आता, अब मैं गुस्से में चीखता हूं। ये सब अल्लाह के मुनकिर हैं, क्योंकि ये अल्लाह तवक्कल दवाखाना है। जो अल्लाह को मानेगा वो यहां आएगा और जो अल्लाह को नहीं मानता वो वहां जाएगा। सिर्फ इतना रखने से मैं अल्लाह ताला का माअज़ल्लाह मालिक बन के बैठ गया हूं कि ये अल्लाह तवक्कल दवाखाना है। कभी मैं कहता हूं ये सारे मुशरिक हैं, क्योंकि मेरा एतमाद किसी सनद पर नहीं कि फलां ने मुझे सनद दिया है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया है। मैं सिर्फ अल्लाह पर एतमाद करके बैठा हूं, सिर्फ अल्लाह पर। और ये डॉक्टर को शाफी समझते हैं, जो अल्लाह को मानने वाला होगा वो मुझसे दुआ लेगा। अब जो मेरा इनकार करे वो अल्लाह का मुनकर बनेगा, क्योंकि नाम भी मैंने रख लिया अल्लाह तवक्कल दवाखाना। बिल्कुल यही तरीका इन लोगों ने इख्तियार किया है। तो कल भी मैं अर्ज कर रहा था कि ये कहते हैं जी शाफी रफ़ा दैन करते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते, हमारे पीछे पड़े। मैंने बताया था कि उनकी रफ़ा दैन एक दलील पर मबनी है, इनकी किसी दलील पर मबनी नहीं। तो उसकी मैं 2 मिसालें आम फहम दिया करता हूं कि देखो डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ के माहिर हो जाता है, मासूम नहीं होता, उससे भी रिएक्शन होते हैं। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक मरीज था, उसने कहा जी आप इंजेक्शन लगा दें, डॉक्टर साहब नहीं मिले, मैंने लगा दिया। मरीज मुझे दुआएं दे रहा है कि अच्छा मौके पर इंजेक्शन लग गया और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है। अब मैं ये कहकर जान छुड़ा सकता हूं
کہ ڈاکٹر جو لگاتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر کے انجیکشن اور میرے انجیکشن میں فرق ہے، یہی فرق شافعی کی رفع دین اور غیر مقلد کی رفع دین میں ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بعد ڈرائیور معصوم نہیں ہوتا، صرف اس فن کا ماہر ہو جاتا ہے۔ اب ڈرائیور بھی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے ان سے، لیکن میں یا کسی بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث گاڑی لے کے جا رہا ہے، کسی درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹا گاڑی سے، کوئی ٹہنی بھی نہیں ٹوٹی، تو پولیس پکڑ رہی ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ وہ بے شک کہے کہ میں تو خانے کعبے لے کے جا رہا ہوں حاجی کرانے کے لیے اس کو، لیکن پولیس یہی کہے گی کہ یہ مجرم ہے۔ وہ یہ کہہ کے نہیں کہہ سکتا وہ اتنے گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو نہیں پکڑا، مجھے ہی پکڑنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ وہ ماہر ہے فن کے اور تو ماہر نہیں ہے، اناڑی ہے۔ تو یہ جو تقابل ہے یہ معصوم غیر معصوم کا نہیں، یہ دھوکہ ان لوگوں کا ہے۔ یہاں ماہر اور غیر ماہر کا ہے کہ مجتہد اپنے فن کا ماہر ہے، اسی مہارت کی بنا پر اس کی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ اسی اجر عطا فرمائے۔ محدث اپنے فن کا ماہر ہے، منکر حدیث منازعت کرنے والا ہے۔ پھر میں نے ان کو حدیث دکھائی ڈاکٹروں کو کہ حضرت پاک فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، صحیح بخاری صفحہ 14 جلد اول، کہ جو معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا سمجھو اس پر قیامت آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ نسخے لکھنے کے لیے کمہاروں کو بٹھائیں، اگر کمہار لکھنا نسخہ شروع کر دے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے ڈاکٹری کے فن پر قیامت آ جائے گی یا نہیں؟ کہنے کہ جی بالکل آ جائے گی۔ تو میں نے کہا غیر مقلد جو نااہل ہیں یہ جب دین میں دخل دیں گے تو دین پر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول روکتے ہیں کہ نااہل جو ہے وہ قریب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں قانون یہی بیان کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ میں اگر اختلاف ہو جائے تو فہم فقیہ حجت ہے، فہم صفی قطعاً حجت نہیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی، لیکن نبوت کی صفت نذیر میں اللہ نے فقہا کو وارث بنایا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں، بشیر ہونا اور نذیر ہونا۔ تو لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ یہ اسی صفت نذیر کا ذکر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقہا کو نبیوں کے بعد نذیر قرار دے دیا ہے، اس لیے صفت نذیر میں فقہا انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور صفت بشیر میں اولیاء اللہ نبیوں کے وارث ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے کیا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگے لہم البشرا، یہ وہی صفت بشیر ہے نا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین نام ہے تعمیر الظاہر والباطن کا، ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے باطن بھی درست ہو جائے۔ ظاہر درست ہوتا ہے فقہی احکام کے مطابق عمل کرنے سے، فرض کو فرض سمجھ کے ادا کیا جائے، واجب کو واجب سمجھ کر، سنت کو سنت سمجھ کر، مستحب کو مستحب سمجھ کر، مکروہ کو مکروہ سمجھ کر چھوڑا جائے، حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑا جائے۔ اور باطن درست ہوتا ہے احکام تصوف کے مطابق عمل کرنے سے۔ تو اس لیے صفت بشیر میں وارث ہے اولیاء اللہ اور صفت نذیر میں وارث ہے فقہاء کرام۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین پر پکا رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم صحیح مل جائے اور ہمت مضبوط ہو جائے۔ علم صحیح ملتا ہے فقہا سے اور ہمت مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کی جوتی سیدھی کرنے۔ جتنے آپ ان کی صحبت میں رہیں گے اتنا آپ کا ایمان اور ہمت کمی ہوتی چلی جائے گی۔ عالم اسباب میں یہ ایک مستقل ذریعہ ہے ہمت کے مضبوط اور قوی کرنے کا۔ تو اس لیے فقہاء کرام جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں صفت نذیر میں۔